سب سے پہلے آپ کو بتائیں FBR کی ویب سائٹ ڈاؤن ہو گئی۔ IRS میں انکم ٹیکس گوشوارے داخل کرنے پر ویب سائٹ ٹیکنیکل خرابی کا شکار۔ ٹیکس گزاروں کو گوشوارے داخل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ وقاص عظیم ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانیں گے۔ وقاص بتائیے گا کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟ جی بالکل، FBR کی ویب سائٹ اس وقت ڈاؤن ہو چکی ہے، اور اگر ٹیکس گزار اپنے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے لیے IRS کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو وہاں سے ان کے ٹیکس گوشوارے داخل نہیں ہو رہا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ FBR کی ویب سائٹ اس وقت ٹیکنیکل ایشو کا شکار ہو چکی ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن سمیت جو دیگر ایسوسی ایشن ہیں اور ٹیکس ماہرین ہیں انہوں نے بھی اس ٹیکنیکل ایشو کی نشاندہی کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ سائبر حملے کے بعد FBR کی ویب سائٹ 15 روز تک مختلف ٹیکنیکل ایشو کا شکار ہوتی رہی ہے، جس کی وجہ سے ٹیکس گزار کو اپنے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی وجہ سے بھی ٹیکس گزار اپنے ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کرا پا رہے۔ پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کا یہ کہنا ہے کہ FBR ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے لیے مزید 90 روز کی اس میں مدت میں توسیع کرے، اور ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ جو ہے وہ 31 دسمبر 2021 مقرر کی جائے، اور FBR اس کے ساتھ ساتھ جو ویب سائٹ ڈاؤن ہو چکی ہے اور جو ٹیکنیکل ایشوز آ رہے ہیں ان کا بھی حل ڈھونڈے۔ جی ان کا بھی حل ڈھونڈا جائے، یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ، وقاص عظیم ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ نادرا کے تمام سینٹر بند کر دیے گئے ہیں، جس کے باعث نادرا کا آپریشن بھی معطل ہو گیا ہے۔ سینٹر بند ہونے کی وجہ سے شناختی کارڈ اور کورونا رجسٹریشن فارم سمیت تمام سروسز معطل ہو چکی ہیں۔ نادرا کے تمام سینٹرز بند کر دیے گئے ہیں، جس کے باعث نادرا آپریشن معطل ہو چکا ہے۔ سینٹر بند ہونے کی وجہ سے شناختی کارڈ اور کورونا رجسٹریشن فارم سمیت تمام سروسز بھی معطل ہو چکی ہیں۔ صغیر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے۔ صغیر بتائیے گا۔ دیکھیں، نادرا کی جانب سے جو ہے وہ تمام آپریشن کو معطل کر دیا گیا ہے، اور یہ آپریشن جو ہے ملک کے جتنے بھی سینٹر ہیں، جس میں میگا سینٹر بھی شامل ہے جو کہ 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں، ان سب میں یہ آپریشن جو ہے معطل کیا گیا ہے۔ اور نادرا کی جانب سے جو وضاحت کی گئی ہے اس میں بتایا گیا کہ سسٹم کی اپ گریڈیشن کی وجہ سے آج سے لے کے جو ہے وہ صبح 10 بجے تک یہ آپریشن معطل کیا گیا ہے، اور اس آپریشن کی وجہ سے شناختی کارڈ کا اجرا بھی ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح کورونا ویکسینیشن کے علاوہ جتنی بھی سروسز نادرا پرووائڈ کر رہا ہے وہ تمام معطل رہیں گی، لیکن صبح 10 بجے تک یہ معطل ہوں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر سروسز بحال کر دی جائیں گی۔ جی بہت شکریہ، صغیر ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ابھی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ داتا کا میلہ سج گیا۔ 3 روزہ عرس تقریبات کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ سیکیورٹی پر 2500 اہلکار تعینات، 650 وارڈنز ٹریفک کی روانی کو یقینی بنائیں گے۔ 27 اور 28 ستمبر کو موبائل فون سروس جزوی طور پر معطل رہے گی۔ داتا کی نگری کی رونقیں دوبالا ہو گئیں۔ حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کے 978ویں عرس کی تقریبات کا آغاز چادر پوشی سے ہوگا۔ عرس کے موقع پر سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ زائرین کی چیکنگ کے لیے واک تھرو گیٹ، الیکٹرک بیریئرز لگ گئے۔ پولیس کے 2500 جوان ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ ٹریفک کی روانی کے لیے 650 وارڈنز کو تعینات کیا گیا ہے۔ پارکنگ کے لیے 4 سٹینڈز مختص ہیں۔ سیکرٹری اوقاف نبیل جاوید اور ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے داتا دربار کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس دفعہ جو انتظامات ہیں وہ انشاءاللہ مثالی ہوں گے، اور باقاعدہ اس میں صفائی کے حوالے سے بھی پہلے تو میرا خیال ہے کوئی آدمی تھا، تو سیکرٹری اوقاف جو ہیں انہوں نے ڈبل شفٹ کر دی ہے، ڈبل لوگ کر دیے، 200 آدمی 24 گھنٹے صفائی کرے گا۔ اور CCTV جو کیمراز ہیں سیکورٹی کے حوالے سے یہ بھی میرا خیال ہے 130 تو محکمہ کے ہیں، باقی کوئی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے یا ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی شاید میرا خیال ہے۔ عرس کی تقریبات 3 روز تک جاری رہیں گی، جبکہ 27 اور 28 ستمبر کو موبائل فون سروس جزوی طور پر معطل رہے گی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر 1962 سے دودھ کی سبیل لگانے کی روایت ہے۔ سالانہ سبیل کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ منتظمین کے مطابق 3 روزہ سبیل میں 1.5 سے 2 لاکھ لیٹر دودھ استعمال ہوگا۔ داتا کی نگری میں لنگر اور نیاز کا سلسلہ سال بھر جاری رہتا ہے، لیکن عرس کے موقع پر دودھ کی بڑی سبیل لگائی جاتی ہے، جس کا سب کو انتظار رہتا ہے۔ حاجی صدیق کی جانب سے 1962 سے دودھ کی سبیل لگائی جا رہی ہے، جس کے انتظامات کو حتمی شکل دی جا چکی ہے۔ صدر ملک سیلر ایسوسی ایشن پنجاب چودھری نصیر گجر کا کہنا ہے کہ 3 روزہ سبیل میں 1.5 سے 2 لاکھ لیٹر دودھ استعمال ہوتا ہے۔ 1962 دے وچ
ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਹਾਜੀ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਬੀਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 1962 ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ चलाते हैं सारे भाई, असी चलाने हैं। चेयरमैन मिल्क सेलर एसोसिएशन चौधरी फयाज गुजर के मुताबिक किसी के पास 5 लीटर दूध हो या 5000 लीटर, अकीदतमंद खुद दूध लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। 5 लीटर से लेके 5000 लीटर तक जो होता है एक बंदा, वो ऐसे भी अकीदतमंद हैं कि उनके पास 5 लीटर होता है तो वो भी लेके उनकी कोशिश होती है कि हम इस लंगर में जो है ना अपना हिस्सा डालें। मेंबर दूध सबील कमेटी चौधरी मुनव्वर हुसैन गुजर का कहना है कि सिक्योरिटी के पेश नज़र सिर्फ सबील के सेक्शन में 18 CCTV कैमरे लगाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने कैमरे लगाए हैं, गवर्नमेंट ज़िली गवर्नमेंट ने भी अपने, पंजाब गवर्नमेंट ने भी अपने कैमरे लगाए हैं, लेकिन 18 कैमरे हम अपने खुद लगाते हैं और अपना एक कंट्रोल रूम बनाते हैं। दाता दरबार पर सिर्फ लाहौर ही नहीं मुल्क भर से ज़ायरीन सलाम के लिए आते हैं। इन अकीदतमंदों की ठंडे और खालिस दूध से तवाज़ो की जाती है। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। सूफी बुजुर्ग सैयद अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज़ आज चादर पोशी से होगा। आपको बताएं कि सूफी बुजुर्ग सैयद अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श के उर्स की तकरीबात का आज बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। इंतज़ामात कैसे हैं जानेंगे, राना अज़हर नूर हमारे साथ मौजूद हैं। राना अज़हर नूर बताइएगा। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आज से आगाज़ होना है और यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी रश है इस वक्त। यहाँ पर ज़ायरीन काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और मुल्क भर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए सिक्योरिटी के हवाले से भी, और यहाँ पर जो है लोगों से कहा गया कि वो ख्याल करें सर्विस का, लोगों से कहा जाता है कि वो मास्क जरूर पहने। देखा जाए तो ये 978वां उर्स होगा दाता साहब का और यहाँ पर काफ़ी जो है ज़ायरीन यहाँ पर आ रहे हैं। और उससे पहले जो है यहाँ पर मनकबत की जो महफिल मुनक़िद की गई जिसमें शोरा कराम यहाँ शरीक हुए और आज जो है महफिल आज जो है इसका बाकायदा आगाज़ हो रहा है उसका, और ये 3 रोज़ जारी रहेगा। उस दौरान जो है आज जो है दूध की सबील लगाई जाएगी। साथ साथ देखा जाए पर काफ़ी रश है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जो है दरबार पर हाजिर दे रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं। और साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी लोग जो आ रहे हैं और लंगर तकसीम भी कर रहे हैं। देखें काफ़ी लोगों में जो है मजबूरी पाई जाती है इस वाले से और आ रहे हैं और यहाँ पर जो है फातिहा खानी की जा रही है, कुरान पाक पढ़ा जा रहा है और लोग काफ़ी यहाँ पर जो है रश मौजूद है। रात के इस पहर भी यहाँ पर लोग जो है यहाँ बैठे हैं और अपनी जो है दुआएं मांग रहे हैं और कल से तकरीबात का बाकायदा आगाज़ होना है। लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो यहाँ पर इस वक्त भी जो है काफ़ी रश देखने में आ रहा है और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी पर मौजूद हैं बड़ी तादाद में। बहुत शुक्रिया राना अज़हर नूर। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बैंकिंग कोर्ट पेशी अबूरी जमानत में 9 अक्टूबर तक तौसीह कर दी गई। नून लीग कारकुनान और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल हुई तल्ख कलामी। मलिक अहमद खान, मियां मरगूब अहमद, सादिया तैमूर, राबिया फारूकी समेत दीगर कायदीन के हक में नारे लगाते रहे। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की बैंकिंग कोर्ट में पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को अदालत जाने से रोक दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलक वहीद, मिर्जा जावेद, रुखसाना कोसर और दीगर हमजा शहबाज जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इस मौके पर मिर्जा जावेद, मलक वहीद, सैयद तौसीफ शाह, मेहर महमूद ने कहा कि हुकूमत ने पेशी के मौके पर कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है। पार्टी सदर से पुरअमन तौर पर इजहार यकजहती के लिए यहाँ आए हैं। शहबाज शरीफ दौर की 56 कंपनियां, राना सनाउल्लाह का मुनशियात केस, सानेह मॉडल टाउन की नई JIT का मामला, ये और अहम दीगर केसेस की समाअत का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। दौर में साफ पानी समेत 56 कंपनियों के कयाम का मामला अदालत आलिया में समाअत 30 सितंबर को होगी। हाई कोर्ट में कंपनियों की कानूनी हैसियत चैलेंज की गई है। मुनशियात बरामदगी केस में नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। केस में नामजद दीगर 3 मुल्जिमान उस्मान, मुबीन और अकरम ने मौकिफ अपनाया कि वो दूसरी गाड़ी पर थे, उनसे कोई रिकवरी नहीं हुई। जब कोई चीज बरामद ही नहीं हुई तो उन पर फर्द जुर्म भी आयद नहीं हो सकती। केस पर मजीद समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। सानेह मॉडल टाउन की नई JIT की तश्कील के खिलाफ केस, चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच 29 सितंबर को दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। वजीर आजम के मामले खुसूसी शहबाज गिल के खिलाफ इस्तगासे पर समाअत, शहबाज गिल की जानिब से नया वकालतनामा जमा करवा दिया गया। केस पर मजीद समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। मदरसा तालिब इल्म से बदफेली के केस में गिरफ्तार मुल्जिम अजीजुर रहमान की जमानत पर समाअत, पुलिस की जानिब से मुकदमे का रिकॉर्ड जमा करवा दिया गया। मुल्जिम का मौकिफ है कि वो बेगुनाह है और उसे जानबूझकर केस में फंसाया गया है। पंजाब हुकूमत ने सड़कों की बहाली और मुरम्मत के बजट को 10 अरब रुपए का कट लगा दिया है।
पंजाब में हजारों छोटी बड़ी सड़कों की बहाली और तज़ीन व आराइश के बजट को कट लगाने से शहरियों को शदीद अजियत का सामना करना पड़ेगा। महकमा मवासलात और तामीरात ने सड़कों और सरकारी इमारतों की बहाली के बजट के लिए ईवान वज़ीर आला से रुजू किया है। ज़राए ने बताया है कि महकमे ने वज़ीर आला पंजाब से M&R की मद में फंड्स बढ़ाने की इस्तदा कर दी है। लाहौर समेत पंजाब भर की सड़कों की बहाली के लिए सालाना 12 अरब रुपए और सरकारी इमारतों की बहाली के लिए 10 अरब रुपए का बजट रखा गया। ताहम हुक्काम का कहना है कि बजट कम मिलने से सड़कों की बहाली और मरम्मत सुस्त रवि का शिकार है। महकमा मवासलात ने वज़ीर आला पंजाब से 22 अरब रुपए का फंड देने की अपील की है। हुक्काम कहते हैं कि काबीना से मंजूरी के बाद ही महकमे को बजट मिल सकेगा। वज़ीर आला पंजाब का नौजवानों के लिए रोजगार प्रोग्राम नौजवानों की तरबियत के लिए फेज़ 2 प्लान भी तैयार कर लिया गया है। टेफ्टा के तहत नौजवानों को बरसरे रोजगार बनाने के लिए तरबियत दी जा रही है। महकमा सन्नत और तिजारत की जानिब से शुरू किए गए तरबियती प्रोग्राम के सबब तालिबे इल्म मुख्तलिफ शोबा जाह ज्वाइन करके रोजी कमाने के काबिल हो सकेंगे। हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखकर बच्चों की तरबियत की जाएगी। सेकेंड फेज के लिए फंड्स के इजरा के बाद तरबियती प्रोग्राम का जल्द आगाज किया जाएगा। अगले माह शहर पर स्मॉग के साए मंडलाने का खदशा है। भट्टा एसोसिएशन ने स्मॉग सीजन में भट्टों की मुमकिना बंदिश पर एतराजात उठा दिए। पंजाब हुकूमत और महकमा माहौलियात भट्टा मालकान को भट्टों की जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकली के लिए आसान कर्जे फराहम न कर सका है। भट्टा एसोसिएशन ने स्मोक सीजन में भट्टों की बंदिश को नामुमकिन करार दे दिया है। भट्टा एसोसिएशन के मुताबिक महकमा माहौलियात कार्रवाइयों के नाम पर रिश्वत सतानी करता रहा। महकमा माहौलियात का रवैया गैर संजीदा है, कारोबार तबाह नहीं कर सकते। महकमा स्मोक सीजन में सिर्फ लाहौर में कागजी कार्रवाइयाँ करता रहा, जबकि पंजाब भर के भट्टे पुरानी टेक्नोलॉजी पर काम करते रहे। रवां बरस सख्त जवाब दिया जाएगा। किस के दौर में कहां गैर कानूनी तामीरात हुई? LDA ने शहर में 106 गैर कानूनी तामीरात का 3 साल से रुका हुआ इंक्वायरी केस दोबारा खोल दिया है। LDA ने शहर में 106 गैर कानूनी तामीरात का 3 साल पुराना इंक्वायरी केस दोबारा खोल दिया है। नए इंक्वायरी अफसर डायरेक्टर नुमान खान ने डिपार्टमेंटल नुमाइंदे से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। 106 गैर कानूनी तामीरात में से 46 फिरोजपुर रोड पर तामीर की गई हैं। पीको रोड, ठोकर न्याज बेग, मौलाना शौकत अली रोड, कच्चा जेल रोड, चंद्राय रोड पर भी गैर कानूनी बिल्डिंग्स तामीर की गई हैं। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस 2018 में मुकम्मल हुआ, जिसे दबा दिया गया। केस के पुराने इंक्वायरी अफसर शकील अंजुम ने मुलविस अफसरान के खिलाफ पीडा कानून के तहत कार्रवाई की सिफारिश की थी। मुतासरीन ने अदालत से रुजू किया, जिस पर LDA हुकाम को 3 साल बाद दोबारा केस खोलना पड़ गया। ज़राए के मुताबिक फिरोजपुर रोड पर होंडा शोरूम, आफ्ताब शोरूम, अहमद फार्मेसी, पैराडाइज शोरूम, अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स का रिकॉर्ड मांगा गया है। गाड़ियों के स्मार्ट कार्ड्स की डिलीवरी और स्कैनिंग का अमल मुतासिर होने का खदशा है। कुरियर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। महकमा एक्साइज आर्जी एक्सटेंशन देकर काम चलाने लगा। गाड़ियों के कागजात की स्कैनिंग, कार्ड्स और फाइलों की डिलीवरी करने वाली कॉरियर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद एक्साइज ने ताहाल नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए हैं। बर वक्त कॉन्ट्रैक्ट न होने से रोजाना की बुनियाद पर हजारों कार्ड्स और फाइलों की तरसील रुक जाएगी। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के मौके पर फाइलें स्कैन करने वाली कंपनी और इन्हीं की डिलीवरी करने वाली कॉरियर कंपनी से रवा साल महकमा एक्साइज की जानिब से स्कैनिंग के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट की बजाय आर्जी एक्सटेंशन देकर काम चलाया जा रहा है। एक्साइज हुकाम के मुताबिक अगले हफ्ते डिलीवरी के लिए एक्सटेंशन दी जा सकती है। डिलीवरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट ऑफिस से किए जाने का इम्कान है। फर्द और इंतकाल के हुसूल के लिए आने वाले साइरीन रुल गए। रेवेन्यू रिकॉर्ड पर पटवारी की बजाय प्राइवेट मुंशी बराजमान है। महकमा एंटी करप्शन 5 माह में प्राइवेट मुंशी के खिलाफ एक कार्रवाई भी नहीं कर सका। माह कबल DG एंटी करप्शन को हाई कोर्ट बहावलपुर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कार्रवाई की हिदायत की थी। महकमा एंटी करप्शन को कहा गया था कि किसी भी पटवार खाने में प्राइवेट मुंशी को बैठने की इजाजत ना दी जाए। प्राइवेट मुंशी की मौजूदगी पर तहसीलदार और AC के खिलाफ कार्रवाई होगी। ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन लाहौर रीजन A में भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। लाहौर के तमाम पटवार खानों में पटवारी कम और मुंशियों की तादाद ज्यादा हो चुकी है, जबकि फर्द और इंतकाल के हसूल के लिए आने वाले साइलिन ख्वार होकर रह गए हैं। दूसरी जानिब तर्जमान एंटी करप्शन का कहना था कि एंटी करप्शन पंजाब भर में कार्रवाइयां कर रहा है। एंटी करप्शन और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुश्तरका क्रैकडाउन करने के लिए लाइहा अमल बना रहे हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्तियों का अमल ताखीर से दोचार है। भर्तियां न होने से सर्विस डिलीवरी भी मुतासिर है। वजीर आला ने नोटिस ले लिया।
पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए सरकारी महकमों में भर्तियों का अमल तवील ताखीर का शिकार है, जिसकी वजह से गवर्नर्स और सर्विस डिलीवरी भी मुतासिर हुई है। वजीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी को PPSC के जरिए मेरिट पर शफाफ भर्तियों का अमल जल्द निपटाने के लिए मैकेनिज्म वज़ा करने की हिदायत की है। वजीर आला की जानिब से जारी मरासले में कहा गया है कि PPSC के जरिए रिक्रूटमेंट का अमल शफाफ और उसे जल्द मुकम्मल करने का मैकेनिज्म वज़ा किया जाए। मरासले में कहा गया है कि जिन असामियों पर PPSC के जरिए भर्ती की जानी है, इस अमल को कम से कम वक्त में मुकम्मल होना चाहिए ताकि गवर्नेंस को बेहतर बनाया जा सके। आपको बताएं कि मिलावट माफिया ने नन्हे बच्चों को भी नहीं बख्शा। बच्चों की टॉफियां, कैंडीज एक्सपायर्ड माल से तैयार करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। अथॉरिटी ने शालीमार टाउन में कैंडीज यूनिट पर छापा मारा। डीजी फॉर अथॉरिटी रफाकत अली निस्वाना के मुताबिक जायदुल मियाद पाउडर, केमिकल्स और खुले रंगों से कैंडीज तैयार करने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। गंदा ऑयल, फंगस और हशरात ज़दा आटे का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। जंग आलूद मशीनरी का इस्तेमाल और सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात पाए गए। डीजी का कहना है कि खुराक का कारोबार पंजाब फूड अथॉरिटी के वज़ा करदा कवानीन के मुताबिक ही किया जा सकता है। बच्चों के लिए तैयार की जाने वाली कैंडीज, स्नैक्स में नाकिस अज्जा के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि अपने इर्द गिर्द कड़ी नजर रखें। गली मोहल्लों में खुराक तैयार करने वाले यूनिट्स की इतला दें। खुराक के मेयार में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अभी आपको अपडेट करें कि कोरोना पाबंदियों के खिलाफ वर्जियों पर जिले इंतजामिया मुतहरिक है। तहसील सिटी में औकात कार कारोबार की खिलाफ वर्जी पर 11 शॉप सील कर दी गई। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे। शहजाद बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना पाबंदियों की खिलाफ वर्जियों पर जिला इंतजामिया के अफसरान मुतहरक हैं। तहसील सिटी में औकात कारोबार की खिलाफ वर्जी पर 11 शॉप सील की गई। जो शॉप सील की गई हैं उसमें फहद कलेक्शन, मिसेज इंटरप्राइजेस, इंसा कारपेट, सीफा गारमेंट, आसिफ मेडिकल स्टोर, सहार यार दुल्हा हाउस, रियलिटी गारमेंट्स, रबी शूज, जहांगीर गारमेंट्स, रहमान ट्रेडर्स, जुनेद गारमेंट्स को भी ताले लगा दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील सिटी फैजान अहमद ने ये शॉप्स सील करवाई हैं और इस हवाले से DC लाहौर का ये कहना है कि कोरोना पाबंदियों की खिलाफ वर्जियों की इजाजत किसी सूरत नहीं दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया शहजाद। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात की तो 5 वार्ड्स पर दोबारा गिनती और इलेक्शन सेल 28 सितंबर को इस हवाले से फैसला सुनाएगा। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के 3 जबकि नून लीग के 2 उम्मीदवारों ने दोबारा गिनती और नताइज रोकने की दरख्वास्तें दायर की थीं। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन सेल ने फैसला महफूज कर लिया, जो 28 सितंबर को सुनाया जाएगा। वाल्टन बोर्ड वार्ड 4 से तहरीक इंसाफ के चौधरी असलम, वार्ड 5 से मेजर रिटायर्ड जवेद जमीर ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दायर की थी। लाहौर बोर्ड वार्ड 10 से तहरीक इंसाफ के हाफिज इब्रार, वार्ड 9 से नून लीग के अयूब भट्टी और वार्ड नंबर 6 से नून लीग के शहबाज भट्टी ने भी दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे रखी है। मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड पर चौधरी ज़हूर इलाही की बरसी पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग काफ पंजाब कामिल अली आगा ने दुआ कराई। चौधरी ज़हूर इलाही मरहूम को खिराज तहसीन पेश किया। चौधरी ज़हूर इलाही की बरसी के मौके पर मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। मुस्लिम लीग काफ पंजाब के जनरल सेक्रेटरी कामिल अली आगा ने दुआ कराई। इस मौके पर जावेद इकबाल, शुएब शाह, सैयद बिलाल मुस्तफ़ा, शेख उमर, शकील अहमद समेत दीगर भी मौजूद थे। कामिल अली आगा का कहना था कि शहीद जमहूरियत चौधरी ज़हूर इलाही ने अपनी जान दे दी मगर उसूलों पर कोई समझौता नहीं किया। चौधरी ज़हूर इलाही ने सियासी कारकुनान में कुर्बानी देने के जज्बे की मिसाल कायम की। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ डेंगी रिफ्रेशिस कोर्स का इनेकाद किया गया। ज़ेरे तरबियत डॉक्टर्स को डेंगी के मर्ज बारे आगाही दी गई। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ डेंगी रिफ्रेशिस कोर्स का इनेकाद किया गया। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर एजाज हुसैन, चेयरपर्सन शोबा मेडिसिन प्रोफेसर बिल्किस शबीर, रजिस्ट्रार KEMU डॉक्टर रियासत अली, चेयरपर्सन डेंगी एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप डॉक्टर सोमिया इक्तदार और कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर खालिद चीमा ने वर्कशॉप में शिरकत की। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि तरबियती कोर्स से सलाहियतों को निखारा जाता है, जिससे सर्विस डिलीवरी और मरीजों की बेहतर निगहदाश्त होती है। कोरोना वबा के दौरान हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने कलीदी किरदार अदा किया है।
ابھی آپ کو بتائیں لائف ٹرسٹ ہسپتال مراکہ میں آنکھوں کے بہنگے پن کی کامیاب سرجری. ہسپتال میں مریضوں کو مفت علاج کی سہولت میسر ہوگی. لائف ٹرسٹ ہسپتال موزہ مراکہ لاہور میں آنکھوں کے بہنگے پن کے آپریشن کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے. لائف ٹرسٹ ہسپتال میں ڈاکٹرز کی جانب سے بہنگے پن کا پہلا کامیاب آپریشن کیا گیا. ایم ایس لائف ہسپتال ڈاکٹر ایوب زاہد کہتے ہیں کہ سفید اور کالا موتیا کے آپریشن گزشتہ 9 برسوں سے جاری ہیں اور ہر ماہ تقریباً 1.5 مفت آپریشن کیے جاتے ہیں اور اب بہنگے پن کا علاج بھی مریضوں کو مفت میسر ہوگا. انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کلچر میں ATX پاک انٹرنشپ پروگرام کی اختتامی تقریب کا انعقاد کیا گیا. انٹرپرینورز، سرمایہ کار، فیشن آئیکونز، ماہرین تعلیم اور صنعتی ماہرین نے شرکت کی. تقریب میں انٹرنشپ پروگرام کی جانب سے حاصل کردہ مقاصد کے حوالے سے آگاہ کیا گیا. انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کلچر میں ATX پاک انٹرنشپ پروگرام کی اختتامی تقریب میں امریکی کونسل جنرل ولیم کے میکنال نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام سے مستقبل میں آپ بھرپور کامیابیاں سمیٹیں گے. آپ کو بتائیں کہ اسٹیج کے نامور اداکار کامیڈین صغیر احمد دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. برجو کی نماز جنازہ آج 10 بجے ادا کی جائے گی. اسٹیج کے نامور اداکار کامیڈین برجو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. برجو کی نماز جنازہ آج کی صبح 10 بجے ادا کی جائے گی. فریدیہ اسکول کے پرنسپل چودھری عبداللطیف کی جامع مسجد کلثوم ٹاؤن شپ میں رسم کل سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعائے خیر کی. پرنسپل فریدیہ اسکول کے پرنسپل چودھری عبداللطیف مرحوم کی رسم کل جامع مسجد کلثوم میں ادا کی گئی. اس موقع پر چودھری تنویر سنار گجر، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ چودھری ندیم نثار، چودھری وسیم نثار گجر، چودھری عبدالحمید سابق سپرنٹینڈنٹ ضلع کونسل نے بھی شرکت کی. چودھری عبدالقادر سمیت عزیز و اقارب اور دوستوں کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی. رسم کل خوانی میں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کے بعد بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی. صدر انجمن تاجران پنجاب میاں محمد ادریس کی جانب سے CEO پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی شعیب صدیقی کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں سماجی اور تاجر رہنما محمد فاروق نعیم وڑائچ، کیسر بھٹی، شہزاد اشرف بھٹی سمیت پارک ویو سٹاف اور تاجر برادری نے شرکت کی. صدر انجمن تاجران پنجاب میاں محمد ادریس کی جانب سے CEO پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی شعیب صدیقی کے اعزاز میں فلیٹیز ہوٹل میں عشائیے کا انعقاد کیا گیا. 12 سالہ احمد نے کارنامہ انجام دے دیا. کورونا وبا کے دوران کتاب لکھ کر دنیا کو حیران کر دیا. احمد نے اپنی کتاب ڈیڈلیئر دین اے پینڈیمک میں اپنے احساسات کی ترجمانی کی ہے. کتاب کی رونمائی میں وزیر تعلیم پنجاب مراد راز، جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال اور مختلف شعبوں سے وابستہ افراد نے شرکت کی. 12 سالہ احمد عمر ایچیسن کالج میں گریڈ 7 کے طالب علم ہیں. کورونا کی وبا کے دوران جب سکول بند ہونے پر بچوں نے چھٹیاں منائی تو احمد عمر نے اس وقت کو تعمیری کام کے لیے استعمال کیا اور اپنے احساسات کو کتاب کی شکل دی. احمد عمر کی کتاب ڈیڈلیئر دین اے پینڈیمک کی رونمائی ہوئی، جس میں وزیر تعلیم پنجاب مراد راز، جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال، وردہ محسن نقوی، MP ہنا پرویز بٹ، ڈاکٹر عمر فاروق، پروفیسر محمد سعید، پروفیسر روحی سعید سمیت مختلف شعبوں سے وابستہ افراد شریک ہوئے. جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال نے احمد جیسے بچوں کو ملک کا مستقبل قرار دیا. I'm sure with his imagination you can achieve anything, and of course he was saying that he needs 4 elements to make him write or can be encouraged in writing, and that was, I think, imagination and support and achieving and patience. احمد نے بتایا کہ وہ والدین کی رہنمائی اور سپورٹ کی بدولت کتاب لکھنے میں کامیاب ہوا. جب لاک ڈاؤن ہوا نا پہلی دفعہ تو میں اپنے ٹائم کو صحیح استعمال نہیں کر رہا تھا، تو میری امی نے کہا کہ کتاب لکھو. پہلے تو میں حیران تھا، لیکن پھر امی کہتی گئی تو میں نے آخرکار لکھ دیا. اور لکھتے ہوئے نا مجھے یعنی بہت انہوں نے سپورٹ دیا مجھے، میرے ابو امی یہ وہ، کیونکہ
ने कोशिश किया कि मैं लिखूं। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने कहा कि वो अहमद जैसे टैलेंट की हौसला अफजाई के लिए इकदाम करेंगे। मैं सोचा था इन बच्चों को प्रमोट करने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ करनी पड़ेगी ताकि दूसरे बच्चे भी इंकरेज हों। सो इंशाल्लाह ताला देखना मैं कोई ना कोई ज़बरदस्त इनके लिए बनाता हूँ चीज़। बेटे के कारनामे पर वालिदैन ने भी मुसरत का इजहार किया। कोविड के अंदर स्कूल्स बंद थे, टाइम था, तो मैंने उसको इनकरेज किया कि वो अपने टाइम को यूटिलाइज़ करे रादर देन वीडियो गेम्स खेले और टाइम वेस्ट करे, और अल्लाह का शुक्र उसने मेरी बात सुनी। उसको अबाउट 11 मंथ्स लगे टू राइट दिस बुक। अहमद का मानना है कि खुद पर यकीन रखें तो कामयाबी ज़रूर मुकद्दर बनती है। वो मुस्तकबिल में मज़ीद किताबें लिखने का इरादा रखते हैं। अहमद उमर हमारी नई नस्ल के लिए मशले राह हैं। ऐसी कुतब से हमारे मुआशरे की तमीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया जा सकता है। कैमरामैन एहसन अली के साथ कोमल इस्लाम, सिटी 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।